Dear students, myself Komal. So in the previous video we have learned about theorem which says if a denominator ends by the prime factorization of 2 raised to n, 5 raised to m, then they are known as the terminating expansion. Yes? So today we are going to start our exercise 1.4, in which example number 1 says, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion. मतलब क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? वो बार बार रिपीट होता रहेगा. Yes, just like if we divide 10 by 3, ठीक है, तो हर बार वो रिपीटेड में जाता रहेगा. देखो 3 3 9, 1, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 0, फिर 3 3 9, ये बढ़ता ही रहेगा, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा. सो दिस इज नोन एज द नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन. सो यहाँ पे हमें जो डिनोमीटर दिए हैं उसका एक्सपांशन दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n, 5 raised to m, then they are known as the terminating decimals. Okay, so our first expansion is 13 by 3125. so 3125 के हमें पार्ट्स बनाने हैं. so 3125, ओके, वो 5 से डिवाइड होगा. 5 6 ज़ा 30, 12, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25. ओके, सो 6 to 5 into 5, but 6 to 5 is the 5 cube. Yes, 6 to 5 is 5 raised to 4. Sorry, 6 to 5 is what? 5 raised to 4. So this is 5 raised to 4 into 5. So 3125 will be 5 raised to 5. So the denominator is of the form 5 raised to 5. So hence the decimal expansion is terminating. Okay, as I said कि अगर उसका डिनोमीटर है या तो 2 का कोई एक पावर होना चाहिए या आइदर इट इज़ अ पावर ऑफ 5. अगर दोनों भी होते हैं तो भी चलेगा, बट उसके अलावा कोई भी पावर आता है देन दे आर नॉट टर्मिनेटिंग. ओके, now this is 7 upon 8. so as you see 8 is equals to nothing but 2 cube. so it is in a form of 2 raised to m. the denominator is of the form of 2 raised to m, hence the decimal expansion is terminating. Okay, now our next is 64 divided by 455. so here also we have to prove that this is terminating or non terminating. okay, चलो, so 455 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 5 से चलेगा. 5 9 ज़ा 45. so this is 0 0, 5 1 ज़ा 5. so 45 455 will be 91 into 5. so 91 can be represented as 30 into 7. so it is 5 into 7 into 13. okay, so 455 can be represented as 455 is equals to 5 into 7 into 13. so since the denominator is not in the form is
not in the form 2 raised to m into 5 raised to n. Hence, the decimal expansion is not terminating. ओके, डिनोमिनेटर में उसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है देन दे आर नॉट टर्मिनेटेड. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज 15 अपॉन 1600. सो 1600 कैन बी रिप्रेजेंट एज 1600 इज रिप्रेजेंटेड एज, कर लेते हैं हम यहाँ पे. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इफ़ आपको अच्छे से आता है. देखो 16 इंटू 100 ऐसा बनेगा. ठीक है, 16 इज व्हाट यू कैन से 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. सो दिस इज पावर ऑफ 2 रेज टू 4, दिस इज 2 रेज टू 4. और ये जो है दिस इज 100 कैन बी रिप्रेजेंट एज 25 होगा, 25 हो जाएगा 5 स्क्वायर एंड दिस इज 2 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर एंड 2 रेज टू 4. सो दिस इज 2 रेज टू 6 एंड 5 स्क्वायर. Okay, so 1600 can be represented as 2 raised to 6 into 5 square. Okay, so the denominator is of the form 2 raised to n into 5 raised to n. Therefore, the decimal expansion is terminating. Yes, now मैं सिर्फ आपको उसके फैक्टर्स बता देती हूँ. ठीक है, और वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है वो आप अपने आप से लिख देना. ओके, नाउ 343 is 7 cube. So the denominator is not in the form of 2 raised to n into 5 raised to m. So therefore the decimal expansion is not terminating. यहाँ पे क्या आ जाएगा? The denominator is not in the form of 2 raised to n into 5 raised to m. Therefore the decimal expansion is non-terminating. Clear? Now the next one, देखो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है. दिस इज 2 raised to m 5 raised to n. ठीक है, तो दिस इज द टर्मिनेटिंग वन. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज अगेन 129 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 7 इंटू 7 रेज टू 5. तो यहाँ पे देखो इसके साथ 7 का एक पावर भी है. सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू m 5 रेज टू n. यहाँ पे एक 7 का अलग से पावर भी आ गया है. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. आप यहाँ पे लिख देना जो मैंने अभी लिखाया है कि क्यों वो नॉन टर्मिनेटिंग है. मैं यहाँ पे सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग लिख देती हूँ. ठीक है, दिस इज 15. सो 5 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3. तो 3 एक ज़्यादा आ गया. सो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग. एंड द लास्ट दैट इज 2210. उसके बाद भी है, सॉरी दिस इज नॉट द लास्ट. टू 210 will be, देखो 11 into 7 and this is 30 into 7. 7 cancel. This is 11 upon 30. 30 can be represented as 2 into 3 into 5. तो 3 एक एक्स्ट्रा आ गया. So therefore this is non terminating. Clear? Now the last one, that is 35 upon 50. सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स को प्राइम बना देना है. मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए. तो 7 5 एंड 10 5 5 गेट्स कैंसल.
7/10. So 10 can be represented as 2 into 5. ठीक है, so this is in the form of decimal expansion, so therefore it is terminating. Clear? Now move on to question number 2, in which we are having write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या था, टर्मिनेटिंग. सो 13 कैन बी डिवाइड बाय 3, 1, 2, 5. ओके, सो यहाँ पे पहले तो 0 आ जाएगा. सो दिस इज 0, 0, 0, 0. यहाँ पे 0 ही चलेगा. That is 1, 3, 0, 0 again. That is 1, 3, 0, 0. Again this is 0. That is 1, 3, 0, 0, 0. Now 4 से चलेगा. ठीक है, which is 12,500. So बचेगा क्या, 500 बचेगा और वापस से एक 0 हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो 1 जा 3, 1, 2, 5. यहाँ पे बच जाएगा 1, 8, 7, 5 एंड 0 अगेन. और ये हो जाएगा 6 से कटेगा 1, 8, 7, 5, 0 and we are having the remainder 0. So this is the decimal expansion of this particular, which is 0.00416. Is it clear? So सब में आपको यही करना है, जो वैल्यूज हमने टर्मिनेटिंग फाइंड की है इन द क्वेश्चन नंबर 1, उसको हमें क्या करना है, सिंपली वी हैव टू डिवाइड. ओके, सो 17 इज डिवाइडेड बाय 8. सो दिस इज 8 2 जा 16, फिर 1, फिर पॉइंट कटने लगेगा. सो दिस इज 8 1 जा 8, 2 अगेन 0, 8 2 जा 16, 4 अगेन 0, 8 5 जा 40. ओके, सो the decimal expansion of 17 by 8 is 2.125. Okay, now move on to next, which is 15 is divided by 1600. तो ये जब बहुत सारी वैल्यू होती है ना, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. देखो यहाँ पे पहले तो 0 0 पे चलेगा. सो 5 1 0 अगेन 0. दिस इज 1 5 0 0 अगेन 0 यहाँ पे आ जाएगा. सो वी आर हैविंग 2 zeros. दिस इज 1 2 0 0 अगेन 1 0. नाउ दिस इज 16 9 जा 144. 16 का टेबल तो आता ही है आपको, भले 1600 का ना आता हो, 16 का टेबल तो आता ही है. सो यहाँ पे बच जाएगा 60 100 1 0 एक कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. So this is 16 3 जा 48. So 4800 बच जाएंगे कितने, 1 2 0 0 और एक 0 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 12,000. नाउ 16 7 जा 112 0 0. यहाँ पे बच जाएंगे 8,000. So 16 5 जा 80. So this is 8,000. This is 0 0 0. Okay, so the decimal expansion of 15 upon 1600 is equals to 0.009375. Okay, now move on to next, which is question number 6 and 8 9 6 8 and 9. तो ये जो सारे क्वेश्चंस है वो आपको खुद से करने हैं इन योर होमवर्क. सबका डेसिमल एक्सपांशन आपको फाइंड करना है एंड उसके आंसर्स आप मुझे भेज सकते हो. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वी आर हैविंग द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस एज गिवन बिलो. In each case decide whether they are rational or not. So rational कब होगा,
यहाँ पे देखो ये नंबर दिया है 43.123456789. सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. ओके, सो यहाँ पे ये जो नंबर दिया है इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, यहाँ से इसका आगे कोई ऐसे डैश 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 नहीं बन रहा, मतलब ये कहीं पे जाके तो रुक जाता होगा. ठीक है, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर. अभी जो नेक्स्ट है विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे देखो वो 1 by 1 बढ़ता जा रहा है, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 फिर इन्फिनिटी तक. सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर. Okay, because we can't represent this number in p by q form. And the next one which is 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो ऐसे बताती है कि वो बार बार रिपीट होता रहेगा. ठीक है, सो दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज इरेशनल. So this is irrational number. So we will just stop here, and our chapter number 1 is completed here with all the exercise, with all the examples. Okay, so see you in the next chapter. Thank you.